Greetings, ladies and gentlemen. It gives us immense pleasure to welcome you all to the second convocation, that is graduation ceremony. I could call it a very hot welcome. Sorry about that. Next time, hopefully, Dr. Rafi will keep it in a cold day so we can tell you it's warm. Right. So anyways, starting welcoming our PVC, Mr. V.K. Singh Sahab of HTU, and honorable guest, Professor Aslam Parvez Sahab, Vice Chancellor Manu, Dr. Abu Saleh Sheikh Saab, he's the director of U.S.-India Policy Institute in Washington, and Dr. Muhammad Haider Khan Saab, he was on our board for IMRC and several other boards, and he is currently a director of U.S.IPI, U.S.-India Policy Institute based in Washington. And also, sitting here, Drs. Qazi, Dr. A.K. Mishra Saab, Dr. Tejwai, Haji Moon Saab, and also Zubair, all under the leadership of Dr. Rafi, who's sitting right here. Thank you. I prepared a very long speech. It's almost 8 to 10 pages. And somebody reminded me that a small joke saying that one of the person, I don't know who this credit goes to, that he used to speak until he had a sweet or a lost it in his mouth. Until it melts, he keeps on speaking. And the other day, he did not have that. Instead, he had a code button, and he did not finish the speech. So I'm not going to do that and bore you with that. I'll address directly. Are the parents here by any chance? Are any parents of the students? There are? Okay, good. So welcome you all, the parents especially, and the graduating students. This is your day, right? For all that you have done. I was in your seat, I don't know how many decades back, but I was in the same seat as you are here today. And back then, I did not have no clue, as maybe today you have no clue as to what your life and what you will be doing for the rest of your careers. But today, I just want to give an example, what you could do. I'm a president of 2 large organizations. I sit on a couple boards, and until we got bought out by another large firm, I was serving as a senior program manager, which is equivalent to a vice president there. If anybody would have told me 30, 35 years back, this is what you will be, I would have not believed them, correct? Similarly, as you guys are sitting today, I mean, I had the honor of meeting almost all of the seniors, even last year, before last year. One thing I asked them, what are you going to do? Very few of them said, sir, I want to be trustee, just like you. I'm like, great. What does that mean? So one was very bold, and he was very honest. He said, I get to stay in a good guest house. That's what I want to do. He thought that's all that the trustees do, is come and stay in a nice guest house. So I said, that's very good. You should get to stay in good hotels or good guest house, but that's not what the role of the trustee is. You know, what exactly they do behind the curtains? You need to be a trustee, definitely, so that people trust you. So that's what I would ask you all. You know, yes, you have almost attained a degree in engineering or management, or I don't know if there are any JMI graduates today. There are JMI graduates as well. So either you become an engineer or a master's in business administration or something from a media institute. Is that your goal? Just to become an engineer or to have a degree? What is a degree worth to you? Just it's a piece of paper, correct?
But what have you learned in the past 4 years, 2 years, or 1 year to get this degree? What have you done? You have given away your precious life of 4, 2, and 1 years to get that degree. All that degree will do is get you into the door of a new life. It will open the door for getting a job. But I don't know who I should give the credit to. Very recently, I was reminded, अगर नौकरी ढूंढोगे तो नौकर ही बनोगे. So I'm like, what are you telling me? So you're reminded, don't just go look for a job. Think beyond that. Think how you can create jobs for others. So that's a change in thinking, right? So in Urdu, Hindi, whatever you want to call it, naukri will just make you a naukri. Just before coming here, we were talking with the PVC Singh Sahib. So there are lots of sugarcane mills and other things that are closing down. But you have the opportunity to be an entrepreneur. You can set up small businesses. You can employ people. Start thinking in that direction. But you can do all that if you have one single word in your mind. Character. Did you develop that? Otherwise, there was a saying in Urdu, I don't know who said that, when engineers, doctors, architects, masters, whatever you want to call them, when their characters are not reflective of their degrees, they used to call them Padhe Likhe Jahil. I'm very serious, right? You do not want to be called that. There are lots of people, right, who does not have the opportunity to go to the colleges, but their characters are exemplary. They do not have degrees, but their characters are exemplary. So with the addition of the 4-year or 2-year degree, your characters would have to be very different than the characters of the rest of the other people surrounding you or whoever you're going to work with. So I'll come back to the characters in a sec. But what are the other characteristics that you need to develop? I mean, I'm especially asking of the other students who are still in first year, second year, and third year, or they have entered into the final year. You still have time. You still have time to respect your, that's fine, right? Beyond your textbooks, you need to learn a lot more. I mean, the ayats that we learned, read just now, right? Alam al-insana ma lam ya'lam. What does that mean? Think about that. Think about it. We taught you what you did not know. So here, all the faculty that's sitting in the back and the faculty that's sitting here on the podium, those are your parents like your spiritual parents. If you have respected your parents, then you will respect the faculty too. That's one thing very key that you can take from here. It's not just the degree. Have you learned other things? Being on time. Punctuality. If we started this program half an hour late, what does that mean? I'm sorry, I'm not putting Dr. Rafi on time. I mean, it was supposed to start at 10. Should have. If you go for half an hour late to an interview, what would happen to you? Think about that. So respect time. The 4 years, or that 3 years, 2 years, whatever number of time that you have here, how are you going to spend that time? What are you going to learn? What are you going to take with you when you go to any interview or when you go to set up any job or any other business for yourself? What are you going to tell your employees? If you yourself do not display the characters that you need to, can you ask of them to do that? Right? So think about that. Likewise, if you live for yourself, that's what we are talking about, then you're not doing the part that is asked of you. Think of how you can help others. Have you thought about your neighbors?
your friends, your relatives, others, what can you do? In general, for humanity. Think about it. When you start to help others, you will be helped. You will be helped. And you can help yourself better because you know what needs of others are and what you need to do. If you can take care of others, then definitely you can take care of yourself. Correct? So those are the few words. It's not words of wisdom. It's a very simple, common sense practice that you need to adapt in your lives when you go out. Yes, it's a very big day for you all. And it's not easy for spending 4 years away from your parents, away from your house, away from the comforts of your house. But I'm positive that you had been provided more than what you could have imagined in this campus. Right? Every day, from warm meals to good bedding and good atmosphere. We are not stopping right there. I don't know if you all know that we have been approved of the diploma courses. I don't know if the student knows about that or not. Should I tell them? Okay. With Dr. Rafi's permission, we have been given permission approved for the diploma courses also. All right. We are trying for bringing in master's degrees. We are trying to bring in the accreditations. All right. On top of it, we are trying to open up an entrepreneur center here. For you all, is this for the students? All right. So you can develop those qualities and start your own businesses and help others more than anybody else. All right. So with that few words, I'll take leave here. In any case, anytime you have any questions, please ask of Dr. Rafi, Dr. Tidwai, Dr. Mishra Saab, or any of your faculty. And congratulations to you all on your very hard work. Thank you. Professor Singh, Professor Aslam Parvez, Dr. Abu Saleh Sharif, Dr. Rafi, and Mr. Maqsood Qadri, and all the people on the podium, and respected guests and students. Hearty congratulations to you all. I think Maqsood Qadri was making an important point. I would like to emphasize myself. When you go out to work, look not just for a job, but make a promise to yourself that whatever you get to do, you'll be the best. Pursue excellence. Give 100% of yourself to your pursuits. Do not keep an eye on the money that you're going to make, but on the performance that you're going to offer. If you do the best, money will chase after you. If you chase after the money, you might lose the goal of achieving the perfection in your profession. This is a happy occasion for you all. I congratulate you and the parents and the teachers. And I hope that this institution, as Maqsood has promised, will become a hub of technology innovation, and you will be, and all of you in some way or form will be able to contribute to it. Without taking much time, my hearty congratulations and all the best of you, best to you all for the future. Thank you. इस डायस पर बैठे हुए सभी मौजूद मेहमान, सामीन हजरात, वालिदैन साहब और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिल रही है, मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनको खुशामदीद कहता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप ज़िंदगी के उस मरहले पे आज खड़े हुए हैं जहां से आपने एक रास्ता पार किया है और अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाया है। तो उस कदम की ओर जाने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मकसूद साहब ने और डॉक्टर साहब ने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, इतनी अच्छी बातें आपको बताई हैं और उन्होंने वादा किया है कि इस इंस्टीट्यूशन को वो टेक्नोलॉजी का हब बनाएंगे। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं।
और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि उनका ख्वाब ताबीर होगा और इस ज़िले के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। It was a very chance factor. I was not planned to come here. I just decided about 2 days ago that I'll be visiting Jahangirabad, very near to Lucknow, and this is my first visit here. I'm so proud and happy and feeling very good with you all people here. I just want to take 2 main points today. You are the students who have spent a lot of time because the halls were of that shape and nature. So the art and architecture of this campus has actually increased the kind of education you are getting and the kind of campus which is related to that education. You are going to remember this for your life. आप 20 साल बाद दिल्ली में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग अरब कंट्रीज को चले जाएंगे, कुछ लोग यूरोप और अमेरिका भी चले जाएंगे, मगर ये कैंपस नहीं बोलेंगे आप, बिकॉज दिस इज द कैंपस विच हैज गिवन यू एजुकेशन. और वो एजुकेशन क्या चीज है, और वो एजुकेशन के 2 पहलू आप ग्रेजुएट प्लेज में ले रहे हैं. देयर इज अ ग्रेजुएट प्लेज जो आपके पास है. I just want to focus on 2 of those pledges. One pledge आपका ये है कि you will join the worldwide kinship of educated people. Worldwide kinship of educated people. तो आपका एक नया धर्म बन रहा है, एक नई पहचान हो रही है. वो पहचान ना रिलीजन के बेसिस से है, ना कास्ट के बेसिस से है, मगर सिर्फ इल्म के बेसिस. ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपको आज मिल रही है, और ये ऐसी चीज है जो जिंदगी भर आपके पास रहेगी. ये गुम होने वाली नहीं है. आपको आज का दिन कोई एक डायमंड दिया जाता आपको जो बहुत ही कीमती हो, आप उसको ले जाते, खुश होते, और उसका क्या उपयोग होता, उसका क्या फायदा होता. मैं कभी कहता हूं कि एक डायमंड जो $1 मिलियन का हो और एक वाटर बॉटल जो अगले चंद मिनट में हम पी चुके होते हैं, ये दोनों की वैल्यू का अंदाजा कीजिए आप. ये एक ऐसी वैल्यू है जो आप रखते हैं, संभाल के रखना चाहिए. वो शायद रख भी पाए या नहीं, पता नहीं कितने चोर उचके पीछे पड़े हैं, आपका कितना डेंजर लेवल बढ़ गया है, आपकी नींद हराम हो गई है, और फिर भी एक पत्थर का टुकड़ा है. अब उस पत्थर के टुकड़े से ना कोई दवाई बन सकती है, ना कोई आप खा के उसको भूख मिटा सकते हैं. मुझे अच्छा लगता है देखने को, है तो हीरा जवाहरात, उसकी बहुत वैल्यू है हमारे हिस्ट्री लिटरेचर में. बादशाह और बहुत सारे रूलर्स जो थे वो उसको रखते हैं और बहुत फख्र महसूस करते हैं, मगर उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? मगर ये एक बॉटल वाटर की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? इस वक्त जब आपको इतनी प्यास लगी है, ऐसी प्यास लगी है कि आपको बहुत ही हेल्थ टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, और आपको पानी के गिलास से 2 घूंट पानी आपको मिल गया, आपको उसने जान बख्श दी. आपको 2 घूंट पानी,
अब ये आप ये दोनों को देखिए कि ये हीरा जवाहरात है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, या ये 2 घूंट पानी को बचाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पानी तो सबको जरूरत है, हम उसका लिहाज नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं, बकेटों बकेटों पानी नहाने में निकल जाता है। सिर्फ दांत मांजने के अंदर आपको पता नहीं 5 लीटर पानी चला गया, पता नहीं क्या क्या होता है। तो पानी की अहमियत सुनिए, सिर्फ 2 घूंट पानी की। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। ऐसी चीज आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने लाइफस्टाइल में ला रहे हैं जो मरते दम तक रहेगी आपकी, कोई चुरा भी नहीं सकता आपका। हीरा तो चुरा लेगा भी, आपको लॉकर्स में रखना पड़ेगा, रात को नींद हराम करना पड़ेगा। अब ये नॉलेज ऐसी चीज है कोई चुरा भी नहीं पाता, और आप जितना दूसरों को देंगे और बढ़ती जाती है। अगर आप हीरे को कैसे बांटोगे, तोड़ोगे तो पत्थर हो गया वो, उसकी वैल्यू भी चलेगी और किसी को दे नहीं सकते। आप खुद बैठ के एक रूम में देख देख के खुश हो रहे हैं उसको, अरे मेरे पास $1 मिलियन का हीरा है, अरे मैं बहुत बड़ा साहूकार हूं। सिर्फ ये एक आदमी, यहां एक ऐसी चीज आपके दिमाग में है जो आप पूरी दुनिया को बांट सकते हैं। यू बिकम द लीडर इन द सोसाइटी। तो ये आपका पहला शपथ है। तो पहले शपथ में आप कम्युनिटी लीडर्स बन रहे हैं, आप एजुकेटेड बन रहे हैं, और वो एजुकेशन का एक उपयोग होता है। वो उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी लेना जरूरी है। हमारा देश ही बढ़ेगा आप लोगों से, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो नापी तोली जाती है इकोनॉमिक्स में, वो प्रोडक्टिविटी एजुकेटेड पर्सन की ज्यादा होती है, और उसमें टेक्निकल एजुकेशन की और भी ज्यादा होती है। अब इस मामले में मैं और एक चीज रखना चाहूंगा बिफोर आई गो टू योर सेकेंड प्लेट। एक दुनिया में बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी की, उसका नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पूरी दुनिया के जो तकनीक बाज हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं वगैरह हैं, वो वहां जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और MIT का आप डिग्री ले लिया तो समझे आप उतनी बड़ी। मगर अगर वो MIT का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये आप सबके लिए है, यहाँ पे मकसूद भाई को भी जो मैनेजमेंट ट्रस्टी हैं, तो उसके अंदर ये चीज छुपी है जो अक्सर हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में गायब है या ज्यादा नहीं रहती, कुछ जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल IIT है, IIT आप जानते हैं आप सब लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से लखनऊ में भी एक आ गई है, दिल्ली में है, बॉम्बे की बहुत मशहूर है IIT। वहाँ अच्छा रिसर्च होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन है वो इन IITs में दी जाती हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो स्ट्रक्चर IITs में भी मौजूद है इंडिया में, और इंडिया में IIT पढ़ने वाले लोग MIT भी चले जाते हैं, मतलब ये एक स्टैंडर्ड। तो उसके अंदर 2 चीजें या 3 चीजें ऐसे हैं जिससे आपका ताल्लुक इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को जुड़ जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री यहां ले चुके हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मास्टर्स IITs में भी कर सकते हैं, और वहां भी अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो आप MIT भी जा सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर मेहनत करना पड़ेगा। अब वो मेहनत करने के रास्तों में 2-3 इश्यूज हैं जो मैं बताना चाहता हूं। वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन सिर्फ उसका हद या लिमिट ये नहीं है कि आपने 2 तारों को जोड़ दिया और आपने इलेक्ट्रिसिटी बरकरार कर दी। ये तो टेक्निकी चीज है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं करने जाऊं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, वो ग्रीन वायर क्या है, रेड वायर क्या है, कुछ पता नहीं है मुझे। मैं तो तकनीकी मामलों में गधे से ज्यादा हमारा दिमाग नहीं है। आप उस तकनीक को जानते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के क्वालिटीज को जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। आप ये सब जानने वाले आप रिसर्च करेंगे तो उस जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी, जो विद्या आपने ली है उसमें छुपी है,
सिर्फ वो लेके आपको यूज नहीं करना है, उसका वृद्धि भी करनी है, उसको बढ़ाना भी है, उसको उस एजुकेशन को और भी ऊंचा ले जाना है। उसको कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये R&D का कॉन्सेप्ट जहांगीर यूनिवर्सिटीज में जरूर लाएं। अगले 35 साल 40 साल में इंडिया के जो एजुकेटेड क्लास है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। उसका मतलब आप गौर से सुनिए, इंडियन बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ इंडियन रिसोर्स नहीं है, सिर्फ इंडिया की वेलफेयर नहीं बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड की बनाएंगे, पूरी दुनिया को आपसे फायदा होगा। क्यों? वो इसलिए कि जब अमेरिका जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, जापान जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां आप जैसे यूथ, जो आपका एज ग्रुप है, आपका एज ग्रुप मैं रखता हूं 20 से 30 तक, वो एज ग्रुप में पॉपुलेशन में बहुत कम मिकदार में बच्चे नजर आते हैं। चाइना में भी अब शुरू हो गया है। चाइना मोस्ट पॉपुलस स्टेट, इंडिया से भी ज्यादा 1.5 बिलियन, मगर वहां आपकी उम्र के बच्चे कम हैं बनिस्बत इंडिया के। इंडिया में आपकी उम्र के बच्चे प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हैं। अब ये रिसोर्स आपके लिए ग्लोबल रिसोर्स है। जब तक आप, तो पूरा ट्रंप, मिस्टर ट्रंप वहां पे आए हैं, नए प्रेसिडेंट, वो हो या ना हो, उनको तो आपके सामने नाक रगड़ना ही पड़ेगा। क्यों? उनको आपकी जरूरत है। आप वहां नहीं जाएंगे, उनकी मशीनरी नहीं चलेगी। आप वहां नहीं जाएंगे, उनके हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे। आप वहां नहीं जाएंगे, उनके कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये दो मेन लीडरशिप रोल्स हैं आपके ग्लोबल। एक R&D, जिसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह जहांगीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कुछ ऐसा सोचा जाएगा। और तीसरा यह है कि आप एक कम्युनिटी लीडर हैं। तो लास्ट बात मैं यहाँ ये रखना चाहता हूँ कि जहांगीर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही पिक्चरस्क, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में बनी है। उसका खुद का एक स्टाइल है, एक आर्ट है, ये तो बहुत अच्छा है। मगर इसके अतराफ बहुत लोग रहते हैं, गाँव हैं। तो आज मुझे मॉर्निंग में हैदर भाई के साथ वो गांव में जाने का मौका हुआ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ट्रस्टीज को कि आप एनुअली एटलीस्ट 2 पर ईयर टू बिगिन विथ, आप स्कॉलरशिप अनाउंस कीजिएगा किसी एक दायरे में। जो गांव के यहाँ बच्चे हैं उनको कम से कम 2 पर ईयर आप फ्री एजुकेशन दें। विद दिस मैं बात खत्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस अहम दिन में जो हमारे इन तलबा और तालिबात के लिए ज़िंदगी का एक अहम मौका है कि वो एक डिग्री लेके जा रहे हैं, मुझे आपके बीच आने का मौका दिया यहाँ के बोर्ड ने, डायरेक्टर ने। और एक अरसे बाद इस इंस्टीट्यूट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा जिस अंदाज से यहाँ ग्रोथ है और कोर्सेज चल रहे हैं। मुझे इस गर्मी का अंदाज़ा है जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, पानी कम मिल रहा है पीने को। बात बहुत मुख्तसर करूँगा, लेकिन जो ज़रूरी भी है और यहाँ भी ज़िक्र हुआ, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह आपको हुक्म देता है अदल का। अदल मीन्स जस्टिस। सो इट इज़ मैंडेटरी ऑन ऑल ऑफ अस to do justice. Do justice. Justice with what? किस चीज़ के साथ इंसाफ करें? तो सबसे पहले रिश्तों के साथ चलिए, रिश्तों के साथ इंसाफ करें और ये जज करें कि क्या हमने इंसाफ किया है बेटा होने का, बेटी होने का, भाई होने का, बहन होने का, बाप होने का, माँ होने का, टीचर होने का।
एक शहरी होने का, एक पड़ोसी होने का। फिर रिश्ता जिम्मेदारियों के साथ भी है कि क्या हमने इंसाफ किया। अगर आपने आपको स्टूडेंट कहते हैं तो हैव वी डन जस्टिस विद द स्कॉलरशिप एंड द स्टूडेंटशिप, क्या हमने इंसाफ किया है। मैं अगर टीचर हूं तो क्या मैंने इंसाफ किया है पढ़ाने के साथ, मैंने अपने टॉपिक को, अपनी क्लास को उस तरह तैयार किया है, हर बच्चे पर अटेंशन दी है, डिड आई डू द जस्टिस। तो जिंदगी में याद रखिए, आप यहां से निकल के जहां भी जाएं, जिस जिम्मेदारी पे भी रहें, उसके साथ इंसाफ जरूर कीजिए। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। और ख़ास तौर से अगर आपका नाम वो नाम है जिससे लगता है कि आप मुसलमान हैं और आप क्लेम भी करते हैं मैं मुसलमान हूं, तो ये कुरान की आयत आप पे फ़र्ज़ है पूरे कुरान की तरह। यू हैव टू डू जस्टिस। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे, बेचैनी भी है, मौसम का भी तकाजा है, और एक पुराना टीचर होने के नाते आई कैन रीड फेसेस कि हाउ मच यू कैन टेक। आई नो द सैचुरेशन लेवल इज़ ऑलरेडी गॉन। थैंक यू वेरी मच, माई बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए संस्था हैं और हमारा विश्वविद्यालय आपके संस्थाओं से निकले हुए जो छात्र हैं उनके आधार पर ही हमारे विश्वविद्यालय का नाम होता है। करीब 600 से ज़्यादा संस्थाएं हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी उनमें से एक है, जो 2009 में इस्टेब्लिश हुआ और तब से पिछले 7-8 सालों में उसने अच्छी पहचान बनाई है अपने इस रीजन में। हमारे यूनिवर्सिटी में भी उसकी अच्छी पहचान बनी है। इसमें निश्चित रूप से यहाँ के हमारे जो ट्रस्टी हैं, जो कॉलेज से जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोग हैं, शिक्षक हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके सानिध्य से, उनके गाइडेंस में हमारे जो छात्र हैं इस संस्था के, वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके समाज में, विश्व में एक प्रतिष्ठा बताएंगे। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको एक शिक्षा दिया है। उस शिक्षा में आपको बताया है कि आप पंक्चुअलिटी होना ज़रूरी है, लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ चेंज होती रहती हैं, उससे भी आपको अवेयर होना ज़रूरी है। आज जो टेक्नोलॉजी यहाँ सीख के जा रहे हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स लेटर वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो लर्निंग कभी रुकती नहीं है। अभी तक आपकी लर्निंग सिर्फ एक कैंपस में होती थी, एक क्लोज सोसाइटी में होती थी, क्लासरूम में होती थी। अब आपकी लर्निंग सोसाइटी, ओपन सोसाइटी में होगी, जिसमें आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग, डिफरेंट एरिया के लोग मिलेंगे, जिनसे आपको लाइफ लॉन्ग सीखना है। और यही सीखना जो आपको, जो जैसा हमें बताया हमारे पूर्ववक्ताओं ने कि कोहिनूर हीरा भी आपसे कम है। हर इंडिविजुअल ग्रेजुएट जो है हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी संस्था का, वो किसी भी हीरे से कम नहीं है। जितना ज़्यादा आप ज्ञानवर्धन करेंगे, जितना समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बांटेंगे, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही आप इंटरनेशनली एक्लेम्ड साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। और वर्ल्ड को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। जैसा कि बताया हमारे पूर्ववक्ताओं ने कि हमारे यहाँ 65% से ज़्यादा युवा हैं और विश्व में किसी भी कंट्री में युवाओं की संख्या इतनी नहीं है। हमारे 65% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो युवाओं से भरी पड़ी है। और उसमें भी जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनका बाकी युवाओं के ऊपर एक एज बनता है, क्योंकि सारे विश्व में टेक्निकल ग्रेजुएट्स की डिमांड है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में लड़के पहले ही विदेशों में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस जैसी संस्थाओं में, जो कि मल्टीनेशनल संस्थाएं हैं, वहाँ जाके हमारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं। वी हैव वेरी गुड बेस ऑफ एलुमनाई इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और वो सभी लोग हिंदुस्तान के, इस देश के जो हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं,
उनको ये विश करते हैं कि वो आगे बढ़ें और उनको ज्वाइन करें, वर्ल्ड में ज्वाइन करें। वर्ल्ड में आज हमारी पहचान हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स की वजह से ही है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो कुछ भी करें राष्ट्र हित में करें, समाज पूरे वर्ल्ड के हित में करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड आई congratulate the trustee, the management people, the faculty of this institute for inviting me and giving a few words to all of you. Thank you very much. Is to join a worldwide kingship of educated person who have earned the opportunities and responsibilities of leadership and service across the world. I am proud of being a graduate of Jahagrabad Institute of Technology. Wherever my life may take me, I will use my knowledge, experience and skills to the best of my ability for the well-being of my society and for the advancement of learning and the public welfare. So in the last but not least, the parents, those are coming from, those have taken all the pain coming all the way from Aligarh, from Gorakhpur, from different areas, from different districts of UP. They all have joined this graduation ceremony. I am really thankful to you all for making this program a grand success. The alumni, of course they are doing job, but even then you took the leave and you are participating. I am thankful to all of you. Sir, I would like to mention that we have a student from 17 states. So that way it's a national integration. It's beautiful campus where learning is different. It cannot be there in many private colleges. Professor V.K. Singh Sahab is present. Sir, I can challenge this thing that in all among private colleges affiliated to AKTU, I think these many states representative would not be there. So that's a beautiful thing with JIT. You should clap for this. So in the last, once again, a great, a valuable thanks to each one of you for participating in this graduation ceremony 2017. Thank you very much.